حیدرآباد کے سٹی سول کورٹ میں وکلا نے ایڈوکیٹس پروٹیکشن بل کی منظوری پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جشن منایا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بل طویل عرصے سے وکلا کا ایک اہم مطالبہ تھا۔ اس بل کا مقصد وکلا کو اپنے پیشہ وارانہ فرائض کی انجام دہی کے دوران دھمکیوں، تشدد اور ہراسانی سے تحفظ فراہم کرنا ہے۔ وکلا برادری کا کہنا ہے کہ اس قانون سے ان کے تحفظ کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی اور وہ بغیر کسی خوف کے اپنے فرائض انجام دے سکیں گے۔ جشن کے دوران وکلا نے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ انصاف کے نظام کو مزید مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ ذرائع کے مطابق وکلا نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس بل پر فوری عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے تاکہ اس کے فوائد جلد از جلد حاصل ہو سکیں۔ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹرمک چور جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School, sculptured by teachers, polished to perfection. At Success, we believe that school is every child's second home. Success the School, where excellence meets opportunity and every child shines. Log on to our website www.successinstitutions.com. کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا سی پی آئی کی جانب سے حیدرآباد ضلع کونسل کے زیر اہتمام اجتماعی فنڈ جمع کرنے کی مہم کا آغاز ہمایوں نگر میں کیا گیا۔ اس مہم کا افتتاح سی پی آئی تلنگانہ کے ریاستی سیکریٹری کونانینی سامبشیوراؤ نے کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سی پی آئی ہمیشہ غریب عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتی آئی ہے اور ایک ایسے سماج کے قیام کے لیے کوشاں ہے جہاں استحصال اور ظلم کا خاتمہ ہو۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ پارٹی کی جدوجہد کو مضبوط بنانے کے لیے دل کھول کر مالی تعاون کریں۔ انہوں نے کہا کہ 1 اپریل سے 10 اپریل تک ریاست بھر میں گھر گھر سی پی آئی مہم چلائی جا رہی جس کے تحت پارٹی کارکنان عوام سے ملاقات کر کے ان سے تعاون کی اپیل کر رہے۔ ہائیڈرا نے رنگا ریڈی ضلع کے راجندر نگر منڈل کے ملاردیو پلی گاؤں میں شاستری پورم کالونی میں ایک بڑا آپریشن کیا۔ 188 ایکڑ پر رہوڈا سے منظور شدہ لی آؤٹ پر ہائیڈرا نے کھیل کے میدان کے لیے مختص زمین پر تعمیر شدہ غیر قانونی ڈھانچے کو ہٹا دیا۔ ہائیڈرا نے 5 عمارتوں کو گرا دیا جو G+3 کی سطح پر زیر تعمیر تھی، 2 چھوٹے سنگل روم ڈھانچے کے ساتھ۔ اس کالونی کے لے آؤٹ پلان کے مطابق جس میں 1800 سے زائد پلاٹ سے تقریباً 6500 مربع گز کا رقبہ کھیل کے میدان کے لیے مختص کیا گیا۔ اگرچہ یہ معلوم تھا کہ یہ اراضی کھیلوں کے لیے مختص کی گئی تھی، مقامی تجاوزات کرنے والوں نے گزشتہ 3 سالوں میں نوٹریز دستاویزات کے ذریعے پلاٹ بیچے اور بغیر کسی اجازت کے تعمیر کیے۔ GHMC نے قبل ازیں نوٹس جاری کیے تھے اور 2024 میں بولنگ آرڈر بھی پاس کیے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ مسماری کی جائے گی، پھر بھی تعمیر جاری رہی۔ اس معاملے میں مقامی باشندوں نے ہائیڈرا میں شکایت درج کرائی۔ ہائیڈرا کے عہدیداروں نے GHMC اور ریونیو عہدیداروں کے ساتھ گراؤنڈ میں جگہ کا معائنہ کیا اور اس بات کی تصدیق کی کہ یہ پلاٹ واقعی ترتیب کے مطابق کھیل کے میدان کے لیے مخصوص تھا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر کاروان حلقے کے MLA کوثر محی الدین نے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے پری مانسون تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر زونل کمشنر مکند ریڈی، GHMC، HMWS اینڈ SB اور TGSPDCL کے عہدیداران موجود تھے۔ سابق کارپوریٹرز محمد نصیر الدین، ہارون فرحان اور امیر الدین نے بھی اس معائنے میں شرکت کی۔ MLA نے حکیم پیٹ، بالکپور نالہ، میراج کالونی، ٹولی چوکی، ندیم کالونی، گولکنڈا، ریتی گلی، کٹورا ہاؤس، ہیراکانہ اور MD لائنز جیسے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے بالکپور نالہ، بڑے باکس ڈرین، NP3 پائپ لائن اور BT روڈ کے جاری کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ برسات کے موسم سے قبل تمام نکاسی آب کے نظام کو مکمل طور پر فعال بنایا جائے اور کاروان حلقے میں اسٹریٹ لائٹس کی درست دیکھ بھال کو یقینی بنایا جائے۔ اس معائنے کے دوران مجلس کے مقامی عہدیداران، یونٹ صدور اور کارکنان کی بڑی تعداد موجود رہی۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کلوا کنٹلا کویتا نے ریاستی حکومت پر راشن کارڈز کے معاملے میں سخت تنقید کی۔
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने पहले साबिक हुकूमत पर राशन कार्ड जारी न करने का इल्जाम लगाया था, लेकिन अब खुद ही राशन कार्ड्स की मनसूखी का अमल शुरू कर दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत एक तरफ 5 लाख नए राशन कार्ड जारी करने की बात कर रही, जबकि दूसरी तरफ 10 से 15 लाख राशन कार्ड्स को खत्म करने की कोशिश कर रही, जो गरीब आवाम के साथ नाइंसाफी के। कविता ने खबरदार किया कि अगर इस तरह की कार्रवाइयां जारी रही तो अवामी सतह पर शदीद रद्दमल सामने आएगा और हुकूमत को इसका जवाब देना पड़ेगा। तेलंगाना के मारूफ अवामी शायर गदर की तौहीन के खिलाफ कांग्रेस कारकुनान ने सख्त एहतजाज किया। इत्तलात के मुताबिक खैरताबाद डीसीसी सदर मोटा रोहित मुदिराज की क़ियादत में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के पुतले को नल्लाकुंटा फीवर हॉस्पिटल चौराहे पर नजर आतिश किया गया। एहतजाज के दौरान मोटा रोहित मुदिराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्लियामेंट इजलास के दौरान अमित शाह की जानिब से गदर के बारे में नामुनासिब रिमार्क्स दिए गए जो नाकाबिल कबूल है। उन्होंने मुतालबा किया कि अमित शाह फौरी तौर पर अवाम से माफी मांगे। నిన్న జరిగినటువంటి పార్లమెంట్ సమావేశాల సాక్షిగా గౌరవ దేశ హోంమంత్రి వర్యులైనటువంటి అమిత్ షా గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజా యుద్ధ నౌకగా పేరొందినటువంటి ప్రజా నాయకుడు, ప్రజా గాయకుడు స్వర్గీయ గద్దర్ గారిని ఉద్దేశించి చేసినటువంటి అనుచిత వ్యాఖ్యల పట్ల रियासती हुकूमत ने यकम अप्रैल के बाद से देही सतह पर बड़े पैमाने पर सरगर्मियां शुरू किया है और तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भाटी विक्रमार्का ने हिदायत दी कि 2 अप्रैल से रियासत भर में ग्राम सभाएं बड़े पैमाने पर मुनक्किद किए जाएं। प्रजा भवन से जिले कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि प्रजा प्रणालिका के तहत 99 रोजा एक्शन प्लान को मुयस्सर तरीके से नाफिज किया जाए। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव और फाइनेंस के आला ओहदेदार संदीप कुमार सुल्तानिया भी मौजूद थे। डिप्टी सीएम ने हिदायत दी कि ग्राम सभाओं को पूरे रियासत में एक ही तर्ज पर मुनज़्ज़म किया जाए। इजलास के आगाज में वज़ीर आला का पैगाम सुनाया जाए और इसके बाद हुकूमत की जानिब से जारी फलाही स्कीमों की तफसीलात अवाम के सामने पेश की जाए। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग के सबब मशरिक वसत में बढ़ते हुए बहरान का असर अब हिंदुस्तान की मुकामी बाजारों तक पहुंचने लगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पेट्रोल, डीजल और LPG की किल्लत की खबरों के दरमियान हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के जिले हेडक्वार्टर वाक़े कोतवाली बाजार में भी ईंधन की कमी देखी जा रही। यहाँ के एक बड़े पेट्रोल पंप को ईंधन के फरोख्त में कटौती करनी पड़ी है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। सूरत हाल ये है कि एडवांस अदायगी के बावजूद कंपनी की तरफ से सप्लाई क्लियर नहीं हो रही। बार बार सप्लाई भेजने की यकीन दहानी के बावजूद ईंधन अभी तक नहीं पहुंचा। इस वजह से आवाम में बेचैनी बढ़ रही और आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद खराब होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा। पेट्रोल पंप के मैनेजर देवेंद्र पटानिया ने कहा है कि हालांकि पेट्रोल और डीजल की फरोख्त में कटौती कोई हुकूमती हिदायत नहीं, बल्कि सभी को पेट्रोल और डीजल दस्तियाब कराने के लिए पंप इंतजामिया ने अपनी सतह पर कटौती की गई। इस तरह 2 व्हीलर गाड़ी को 200 रुपए, 4 व्हीलर गाड़ी को 1000 रुपए का पेट्रोल समेत 1500 रुपए का डीजल दिया जा रहा। अभी पेट्रोल पंप पर सिर्फ 7000 लीटर पेट्रोल और डीजल ही बाकी बचा है। अगर गाड़ियां जल्द नहीं आई तो दोपहर तक ही बिक्री हो पाएगी और पंप खुश्क हो जाएगा। रेगुलर बसों और एम्बुलेंस को पूरा ईंधन फराहम किया जा रहा। तमिलनाडु में महकमे मौसमियात ने वार्निंग दी है कि रियासत के कई हिस्सों में जल्द ही शदीद गर्मी यानी हीट वेव का असर तेज हो सकता है। इंतखाब की तारीख 23 अप्रैल के करीब आते ही इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर है और इसी दौरान दर्जे हरारत में भी शदीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। IMD की पेशगोई के मुताबिक इस बार अप्रैल में तमिलनाडु में मामूली से ज्यादा हीट वेव वाले दिन दर्ज हो सकते हैं। खासतौर पर शुमाली साहिली अजला जैसे चेन्नई और आसपास के इलाकों में इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। हालांकि अप्रैल की शुरुआत में वक्फे से बारिश होने के सबब थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन इसके बाद दर्जे हरारत के तेजी से बढ़ने का इम्कान है। IMD के इलाकाई मौसमियाती मरकज चेन्नई ने वार्निंग दी है कि इस पूरे माह के दौरान ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा रह सकता है।
कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को मतलब किया है कि मगरबी बंगाल में जारी वोटर लिस्ट के खसूसी गहरी नजरसानी SIR से मुतालिक ज्यादातर एतराजात को हल कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को दी गई मालूमात के मुताबिक रियासत में वोटर लिस्ट के हवाले से मजमूई तौर पर 60 लाख एतराजात दर्ज किए गए थे, जिनमें से तकरीबन 47 लाख एतराजात निपटा दिए गए हैं। इस मामले की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI सूर्यकांत, जस्टिस जोए मालिया बागची और जस्टिस विपुल M पंचोली की बेंच कर रही। बेंच ने बताया कि उन्हें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से इस पेशरफ्त के मुतालिक एक खत मौसूल हुआ। एतराजात को निपटाने की तेज रफ्तारी देखकर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्बित रद्दअमल का इजहार किया। नए माली साल 2026-27 के आगाज के साथ ही अवाम और कारोबारी हलकों को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा, क्योंकि कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में नुमाया इजाफा कर दिया गया। 1 अप्रैल से नाफिज हुए इस इजाफे के तहत 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत मुख्तलिफ शहरों में 195 रुपए से लेकर 218 रुपए तक बढ़ गई, जिसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत 2078 रुपए 50 पैसे तक पहुँच गई, जो पहले 1883 रुपए थी। इसी तरह कोलकाता में सिलेंडर की कीमत 1990 रुपए से बढ़कर 2208 रुपए हो गई। मुंबई में ये 1835 रुपए से बढ़कर 2031 रुपए तक जा पहुंची, जबकि चेन्नई में इसकी नई कीमत 2246 रुपए 50 पैसे मुकर्रर की गई, जो पहले 2043 रुपए 50 पैसे थी। इस तरह मुख्तलिफ शहरों में कीमतों में इजाफा वाज़ेह तौर पर देखा जा रहा, जिसका बराह रास्त असर होटलों, रेस्टोरेंटों, ढाबों और दीगर कारोबारी इदारों पर पड़ रहा। मशरिक वसते में जारी जंग का असर अब हिंदुस्तान की कई रियासतों में वाज़ेह तौर पर नजर आने लगा है, जहां LPG बहरान ने सनत से लेकर रोजमर्रा की अवामी जिंदगी तक हर चीज को दरहम बरहम कर दिया। राजस्थान में कमर्शियल LPG की कमी की वजह से टेक्सटाइल, मार्बल और केमिकल फैक्ट्रियां बंद हो रही, जिससे हजारों मजदूर बेरोजगार होकर घरों को लौटने में मजबूर हैं। यही सूरत हाल गुजरात, मुंबई, मुख्तलिफ रियासतों में देखी जा रही। मुंबई में भी यही सूरत हाल है। लोग एक सिलेंडर के लिए लंबी लाइन में खड़े हैं और ब्लैक मार्केटिंग की वजह से कीमतें दोगुना और 3 गुना बढ़ गई है। गुजरात के सूरत में भी गैस की शदीद किल्लत की वजह से बड़े पैमाने पर गैर मुक़ीम मजदूरों की नकल मकानी शुरू हो गई। मुतासरा मजदूरों का कहना है कि जब खाना पकाना ही मुश्किल हो गया तो शहर में रहना बेकार है। हुकूमती दावों के बावजूद जमीनी सूरत हाल संगीन बनी हुई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।